हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। मैं सुरजीत राजपूत दिव्य संकल्प आईएएस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि साइंस एंड टेक के अंदर ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था, और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि एग्जाम में बहुत बार आया है। और इट इज रिलेटेड विद द वी कैन से दैट द ट्रांसमिशन पैटर्न के ऊपर, कि किस प्रकार से आईसीटी टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांसमिशन संभव हो पाता है, या हम कह सकते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन। तो बहुत बार एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है वो एक शॉर्ट नोट लिखना होता है वायरलेस ट्रांसमिशन के ऊपर। ठीक है, कि किस प्रकार से हम जितने नेटवर्क यूज करते हैं तो उसके अंदर ट्रांसमिशन किस प्रकार के होते हैं। और आपको पता होगा कि हमने ऑप्टिकल फाइबर का भी कंसेप्ट समझा था, कि ऑप्टिकल फाइबर्स किस प्रकार से, जो दृश्य तंतु होते हैं, वो किस प्रकार से अपने ट्रांसमिशन की संभावना बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो था वो है दैट्स कॉल्ड लाइन ट्रांसमिशन, या हम कह सकते हैं तारों के द्वारा होने वाला ट्रांसमिशन। तारों के द्वारा होने वाले ट्रांसमिशन के अंदर, जिसको हम गाइडेड ट्रांसमिशन भी कह सकते थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर्स या हमारे पास जो कॉपर वायर्स होती हैं उसके द्वारा ट्रांसमिशन करते हैं। दूसरा अनगाइडेड ट्रांसमिशन जो पैटर्न था, उसके अंदर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है वेव विच इज कॉल्ड कि हम वायरलेस ट्रांसमिशन की बात कर पाए। यानी जो वायरलेस ट्रांसमिशन है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Now we are friends. Now we are going to understand a new topic, which is the wireless transmission. यानी वायरलेस ट्रांसमिशन क्या है। एंड दिस क्वेश्चन अगेन, ये 10 मार्क्स का अकाउंट जो इसका वेटेज रहता है, कुछ एग्जाम्स के अंदर इसको क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वायरलेस ट्रांसमिशन। तो वायरलेस ट्रांसमिशन is a concept which is totally based on the electromagnetic which is totally based on electromagnetic waves. Electromagnetic waves, we know that it's a kind of wave which have which have a wavelength which have a wavelength 10 to power minus 14 meter to 10 to power 4 meter. So it's a wide range. So this waves have a wide range. So all the waves which comes under this wavelength range, 10 to power minus 14 meter to 10 to power 4 meter, all are known as the electromagnetic waves. The important features of the electromagnetic waves, if we consider the features, so first of all we should know that the concept was given by the Maxwell. So these waves are also known as the Maxwell waves. So these waves are called Maxwell waves, or actually it's a broad range pattern. Okay. So this is a broad range pattern. So all the waves comes under this category. And one thing more, we should know that these waves or travel with the speed of the light. So that is an important feature. And these waves can also travel in a vacuum. First of all, we should know that the waves, generally we have two kinds of waves. One is mechanical, other is non-mechanical. Mechanical waves are one which can travel only in a medium. That means they always require a medium, material medium for their propagation. But the non-mechanical part is the waves which travel even in the vacuum. So they can travel in the medium or as well as in the vacuum. So that is a pattern. Now this wave is comes under category of non-mechanical pattern. So that means electromagnetic waves, they have a broad range of wavelength. तो इनका जो wavelength है बहुत लंबा होता है, 10 to power minus 14 to 10 to power 4 meter, and all the waves travel with the speed of light. Travel with speed of light.
Okay, so these waves have the two part, one is the electric and the magnetic component. So these waves have a two fields, electric and magnetic component के अंदर ये मूव करता है. So this is a concept जो कि important है for the transmission के लिए. Now the friends, we should know that कि what is the pattern, कि अगर हम इसका थोड़ा सा एक आउटलुक लेके देखें ताकि आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाए समझना, क्योंकि you have to write down in a around 100 to 150 वर्ड्स का इसको लिखना पड़ेगा आपको. तो इसके लिए आप इसका कुछ रेंज के बारे में बता भी सकते हैं, इसके टाइप्स ऑफ वेव्स, सो वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पैटर्न एंड द टाइप ऑफ वेव्स. Now we see that electromagnetic waves, if we make a table, so इसमें the different components of the electromagnetic waves, as I told you, it is 10 to power 14 meter to 10 to power 4 meter. It is a wide range. तो अगर इसमें हम बात करें type of wave, okay, then discover and wavelength. It will be easy for you, ताकि आपको समझना थोड़ा आसान होगा कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. तो अगर हम उसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो वेव आता है दैट इज इट इज नोन एज गामा रेज, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द बैक्यूरेल. एंड द वेवलेंथ जो रेंज है 10 टू पावर -14 टू 10 टू पावर -10 मीटर. तो ये जो वेवलेंथ है ये इसकी है. और दूसरी बात, अगर हम देखें इसकी, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है आपको मालूम है इट इज 10 टू पावर 20 हर्ट्ज टू 10 टू पावर 18 हर्ट्ज. तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज काफी हाई होती है. ओके, तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी काफी हाई होती है. दूसरी ओर अगर हम बात करें एक्सरेज, एक्सरेज डिस्कवर्ड बाय द रंजन, the range is 10 to power -10 meter to 10 to power -8 meter. तो इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो 10 टू पावर -10 से 10 टू पावर -8 मीटर तक हो जाती है. इसी तरह से दूसरी वेव्स, दिस इज नोन एज अ अल्ट्रावायलेट, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द रिंटर, and the range is 10 to power -18 meter to 10 to power -7 meter. And after this another wave which is called visible light, and friends आपको मालूम है it was discovered by the Newton, and the range, जो रेंज है इसका, that means it should be 3.9 into 10 to power -7 meter to 7.8 into 10 to power -7 meter. तो आपको मालूम है ये जो विजिबल लाइट होती है इट कैरीज ऑल द 7 कलर्स. तो ऑल द 7 कलर्स जो कि आपको विजिबल होते हैं, जिसके अंदर हम सब चीजें देख पाते हैं, वो इसी कैटेगरीज के अंदर रहेंगी. ठीक है, तो यहाँ पर इन तरंगों को भी हमने देखा है और इनके अंदर यानी ऑल दी विजिबिलिटीज के साथ जुड़ता है. जबकि अनदर रेंज अगर हम बात करें विच इज कॉल्ड इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो रेस होती हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाय द हर्शल. ओके, तो दैट मीन्स इट वाज 7.8 10 to power -7 meter to 10 to power -3 meter. ओके, तो इंफ्रारेड रेज जो है ये इनकी रेंज अलग आ जाती है. जबकि इसके अलावा हमारे पास एक और जो वेव आती है और दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रेडियो वेव्स. दिस शॉर्ट रेडियो वेव्स डिस्कवर्ड बाय द हेनरिक हर्ट्ज. So these are also called Hertzian waves, and the range is 10 to power -3 meter to 1 meter. इसका जो रेंज है वो शॉर्ट रेडियो वेव्स का
हेनरिक हर्ट्ज एंड 10⁻³ से टू 1 मीटर की रेंज का मिलेगा आपको ये वेव। तो दिस इज अनदर वेव जिसका रेंज जो है थोड़ा बढ़ रहा है, दैट इज इट कम्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव वेव, यानी इसका एक वाइड रेंज हो गया। बाकी हमारे सब माइनस के अंदर थी, बट ये 1 मीटर तक अप्रॉक्स जाएगी। और इसके अलावा एक और वेव विच इज कॉल्ड लॉन्ग रेडियो वेव्स, and this is discovered by Marconi, and the range is 1 meter to 10⁻⁴ मीटर। तो इसके इन दोनों रेंज के बीच में एक और वेव अगर हम बात करें शॉर्ट रेडियो वेव से, तो इसमें एक छोटा सा वेव आता है एंड दिस इज कॉल्ड अ माइक्रोवेव्स। डियर फ्रेंड्स, जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा, माइक्रोवेव, ठीक है। तो माइक्रोवेव जो है इसका जो रेंज है इसका 10⁻⁻² मीटर टू 10⁻⁴ मीटर। तो ये सूक्ष्म तरंगे होती हैं, और ये जो माइक्रोवेव्स और ये जो रेडियो वेव्स, ये तीनों की तीनों वेव्स अगर हम मान के चले अक्रॉस, हम विजिबल को भी ले सकते हैं इसके अंदर, तो इन वेव्स को these waves can be considered for the ट्रांसमिशन, यानी वेव जिसे हम कहते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए, तो वायरलेस ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट बाय these waves। So if we are talking about the wireless transmission, and we know that wireless transmission is a very important transmission, because you have to note down there are so many areas where fibers cannot be we cannot तो fiber हम बिछा नहीं पाते हैं, because there is little bit a desert area, like we say that there is a mountains area, there is a long marshy area, swampy area, and there is a mountainy area, so we have a lots of problem। तो उस दौरान हम वहां पर वायर सिस्टम नहीं बिछा सकते हैं। तो सच एरियाज जहां पर ऐसा प्रॉब्लम्स होता है, या बहुत से मतलब ऐसे बड़े बड़े पहाड़ है या कुछ ऐसे, तो दैट मीन्स वी कैन यूज अनदर पैटर्न एंड दिस इज कॉल्ड वायरलेस। तो उसमें वायरलेस ट्रांसमिशन का यूज किया जाएगा, ओके। और वायरलेस ट्रांसमिशन के द्वारा वी कैन मेक द ट्रांसमिशन टू द लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। सो वी कैन मेक अ ट्रांसमिशन टू द लॉन्ग डिस्टेंस, दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पर आपको समझना है, तो जो कि आपके जो वायर सिस्टम था उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। एंड वायर सिस्टम दे हैव सम डिस्ट्रक्शंस, उसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं, ओके। देयर इज अ साउंड सिस्टम इज डिफरेंट, तो दैट मींस उसमें कुछ रुकावटें होती हैं, व्यवधान होते हैं, सो वी कैन नॉट यूज दिस पैटर्न। तो नाउ वायरलेस ट्रांसमिशन का जो उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। सो डू रिमेंबर वन थिंग कि इनके अंदर हम जो रेडियो वेव्स हैं एंड जो शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इनका यूज कर सकते हैं, इंफ्रारेड यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द वेव्स, और समटाइम्स वी कैन आल्सो यूज द विजिबल, लेकिन मेनली हम जो यूज करते हैं रेडियो ट्रांसमिशन के लिए वो हमारे पास दैट मीन्स इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड दैट इज अ शॉर्ट रेडियो एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है। एंड इसमें आप देखेंगे जो इनका जो रेंज है वो बहुत कम है, दैट्स अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 10⁻⁶ से 10⁻⁴ हर्ट्ज। तो आप देखें इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है लॉन्ग रेडियो वेव्स का, तो लॉन्ग रेडियो वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10⁻⁶ से 10⁻⁴। और आप नोट करें कि फ्रीक्वेंसी रेंज धीरे धीरे ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी, ओके। तो दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, तो दिस मीन्स दे हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो अब यहां पर इसके पास फ्रीक्वेंसी रेंज काफी हाई मिलेगी, ओके। तो और जबकि हमारे पास जो लॉन्ग रेडियो वेव्स है इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो बहुत कम है, ओके। तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत कम है। तो आपने देखा हो जैसे हम इस स्पेक्ट्रम में मूव करते हैं फ्रॉम अपर टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो इसके हम फ्रीक्वेंसी रेंज घटती है, और जो हमारे पास वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। तो वेवलेंथ जो माइनस में था वो प्लस में आ रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो दैट मीन जो हाई से लो फ्रीक्वेंसी की ओर। तो आपको यू शुड नोट दैट कि आपका जो गामा रेस है दे हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी बीम ऑफ लाइट,
यानी कि हमके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती है वो गामा रेस है। ओके, और इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। ओके, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 की ओर आ रही है, जबकि हमारा जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर बात करें वो 10⁻6 से 10⁻4 हर्ट्ज। ओके, तो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत कम है, लेकिन इसका अगर हम बात करें वेवलेंथ तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा 1 मीटर टू 10⁻4 मीटर। और यही रीजन है कि हम इनका जो उपयोग है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हम कर सकते हैं इन वेव्स का। राइट फ्रेंड, तो हमने यहां पर इस क्लियर को देखा। अब थोड़ा सा अगर चीजों को और क्लैरिटी से समझें तो वो क्लैरिटी के मुताबिक अगर आप देखो कि अगर हम बात करें कि जो हमारे पास वी कैन से दैट जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं या जिसको हम रेडियो वेव्स भी कहते हैं, या हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं, या हमारे पास अनदर वेव्स दैट इज वी कैन इंफ्रारेड होती हैं, तो दीज वेव्स कैन बी यूज फॉर द for wireless transmission pattern. And this wireless transmission pattern first time start in the हवाई आइलैंड में शुरू किया गया था, क्योंकि आपको मालूम है हवाई आइलैंड जो है एक प्रकार का समुद्र के अंदर बना हुआ एक आइलैंड है, तो वहां पर मतलब वायरलेस सिस्टम का शुरुआत सबसे पहले वहां देखा गया। अगर आप देखो कि इस ट्रांसमिशन के व्हाट आर द ड्रॉबैक और उसका जो अगर देखें नॉर्मली तो इसका फायदे क्या हो सकते हैं हमें, तो वी शुड नो द व्हाट इज द मेरिट। तो इसके मेरिट्स की अगर बात करें तो आप देखोगे कि जो रेडियो वेव्स होती हैं, ओके, तो इन रेडियो वेव्स को आप आसानी से मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। या अगर हम बात करें माइक्रोवेव्स होती हैं तो माइक्रो या सूक्ष्म तरंगे, तो दे कैन मूव इन अ मतलब सिंगल लाइट के अंदर सिंगल रे के अंदर मूव करती हैं, और हम आसानी से इनको कॉन्सेंट्रेट करके, यानी पैराबोलिक प्रकार का एंटीना होता है, तो उसके द्वारा इसको हम कॉन्सेंट्रेट करा के फिर इसको नेक्स्ट दूरी तक भेज सकते हैं, ट्रांसमिशन संभव करवा सकते हैं। तो ट्रांसमिशन पॉसिबिलिटीज के लिए इनके लिए हम इनको कॉन्सेंट्रेट करा के और लंबी दूरी के लिए हमको मूव करवा सकते हैं, तो इसीलिए हम इनको तरंगों का यूज करते हैं। इसमें एक चीज और समझ सकते हैं आप, जो वी कैन से वी हैव अ इंफ्रारेड रेस। जो इंफ्रारेड रेस होती हैं, तो इंफ्रारेड रेस दैट मीन्स ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज की जाती हैं। वी शुड नोट दैट दे कैन बी यूज फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, कैन नॉट बी ट्रेवल फ्रॉम solid medium. We should note that these wave cannot travel from the solid medium. So that is the reason इनको आप जो यूज करते हैं वो कुछ दूरी के लिए। So if you are watching your television, we can use a remote. So that means these waves are used in a remote purpose. So that means इनको हम remotes के लिए यूज करते हैं। ओके, और दैट मीन्स इट्स द बेस्ट फॉर अस। इसका एडवांटेज भी है, क्योंकि इफ यू आर यूजिंग द इंफ्रारेड रेज फॉर द रिमोट, तो आपने देखा होगा यू कैन नॉट डिस्टर्ब द एडजस्टेंट रूम। यानी एडजस्टेंट रूम में अगर आपको टीवी कुछ और चल रहा है या स्टीरियो चल रहा है समथिंग लाइक दैट, तो आप अपने रूम में अपने यूज कर रहे हैं रिमोट से, तो यू कैन चेंज योर चैनल एट योर रूम, तो आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट गिव ट्रबल टू द नेक्स्ट रूम। आप वहां पर कोई ट्रबल नहीं कर रहे हैं, यानी आपको कुछ अपने रिमोट का जो है आप चैनल का चेंज करते हो, आपके साथ में रूम में कोई टीवी है तो उसका चैनल चेंज नहीं होगा, या उसके अंदर आप कुछ चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो दैट इज अ कंसेप्ट कि आप इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कीजिए। जैसे आपका वीसीआरस होते थे एक जमाने में, या आपके स्टीरियोस होते हैं, तो उनके लिए आपका चैनल्स का यूज करना या चैनल चेंज करना या रिमोट्स के द्वारा, तो हम वहां पर इनको यूज कर सकते हैं। तो इनका इंफ्रारेड का जो है कंसेप्ट। दूसरी बात, इसका जो होता है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, यानी ये बिल्डिंग के अंदर ही ये सेफ रहते हैं, ये साथ वाले या बिल्डिंग के बाहर जाकर किसी और को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। तो दैट इज अ रीजन कि आप इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, यानी आपको इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने ही एरिया के अंदर आप उसको यूज कर पाते हैं, और कोई आपके डाटा को चुरा नहीं सकता। जबकि जो रेडियो वेव्स होती हैं, तो ये आपको ये बिल्डिंग्स को भी क्रॉस कर जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर
यानी ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिक्कत करता है, क्योंकि इसमें आपकी हैकिंग हो सकती है। तो दैट इज अ कंसेप्ट, यानी यहाँ पर आपके सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंसेप्ट है, तो कभी आपको आता है वायरलेस ट्रांसमिशन का, तो वायरलेस ट्रांसमिशन के केस में यू शुड गिव द सम आइडिया कि व्हाट इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन, और कौन द नेम और द वेज व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस के लिए, और the what is the range, what is the wavelength pattern of these waves, what are the frequency range of these waves, okay, and what is the origin of the wireless system, सबसे पहले origin कहाँ पे हुआ था, इसके बारे में should have some idea, और उसके बाद what are the advantages of these waves। तो माइक्रोवेव्स का एडवांटेज क्या होता है, तो नेचुरली अभी हमने डिस्कस किया कि these are the waves which can travel in a straight line, or we can easily concentrate them on the parabolic antenna and then we can pass on to the next one, ये एंटीना। तो इस तरह से ट्रांसमिशन एंड इसका ब्रॉडकास्टिंग दोनों सिस्टम करवा सकते हैं। ओके, ऐसी लॉन्ग रेडियो वेव्स है जिसे हम रेडियो वेव्स कहते हैं। तो रेडियो वेव्स आपको मालूम है, इसका हम जो यूज करते हैं, रेडियो जो सैटेलाइट जो फोन्स होते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। रेडियो वेव्स आपको मालूम, वी कैन यूज इवन इन द स्पेस एरिया, जहाँ पे वी हैव टू एस्ट्रोनॉट दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वो दे कैन यूज द वायरलेस सिस्टम, वो उसको भी यूज करते हैं। ओके, तो यानी क्यों यूज करते हैं, एज आई टोल्ड यू दिस वेव्स आर द ओनली वेव्स व्हिच कैन बी ट्रैवल इवन इन द वैक्यूम, ये वैक्यूम यानी निर्वात में भी गति करते हैं। So this is a concept behind it. So if there's a short note about the wireless transmission, you have to give the details, okay, step by step, you have to give the point by point. That means first of all we have the origin, कहाँ से उसका origin हुआ। Second point, we should note that what is the wave, name the waves which have to use in this pattern, then what is the frequency range of these waves, then what is the wavelength of these waves, and then what are the merits of these waves, okay, and this is a concept जो कि आपको डिस्कस करना होगा इसके अंदर। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा जो चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी थी। तो अगर ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो आई होप कि ये पॉइंट को आप अच्छे से इलेबोरेट करके इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ, जिसको एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।